Again, students, in the previous lecture we have discussed about the dimensional analysis and the application of dimensional analysis, and today we are going to uh, discuss another application of dimensional analysis, that is the deducing the relation between the physical quantities. Uh, we can use the dimensional analysis for deducing the relations between the physical quantities. Suppose we have to find out a relation for the centripetal force acting on a particle having mass m, velocity v, and it is moving on a path of radius r. Okay, we have given a particle of mass m which is moving with velocity v in a circular orbit of radius r. We have to find the relation for the force. Okay, so we can write F is equals to m mass raised to power a, v raised to power b, and r raised to power c. Here we have to find the values of a, b, and c. Okay, using the dimensional formula, we know that the dimensional formula for force is equals to mlt minus 2, and for the mass it is m raised to power a, and for velocity it is lt minus 1 raised to power b, and for radius is a length l raised to power c, or we have m l t minus 2 is equals to m raised to power a, l raised to power b plus c, because both have the same base, so power will be added, and t raised to power minus b. Okay, so when we compare the powers of the terms, suppose we are comparing the powers of m, then we have here the power of m is 1 and here the power of m is a. So comparing the powers on the both sides, पावर्स को जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज यहाँ पर जो m की पावर है हमारे पास 1 है और यहाँ पर m की पावर a है. सिमिलरली व्हेन वी कंपेयर द पावर ऑफ l, देन इट विल बी इक्वल्स टू b प्लस c इज इक्वल्स टू 1, एंड व्हेन वी कंपेयर द पावर्स ऑफ t, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस b is equals to minus 2, or b is equals to 2. Here we have a is equals to 1 and b is equals to 2. When we put the value of b in this equation, we have 2 plus c is equals to 1 and c is equals to minus 1. C is equals to minus 1. So we have the values of a, b and c, and also we have to find these three values. ये तीन values ही हमें find out करनी थी. So जब ये values हम इस relation में put करते हैं यहाँ पर इस relation में, तो हमारे पास जो force आएगा F is equals to m raised to power a, and the value of a is 1, and v raised to power b, and the value of b is 2, so mv square, and r raised to power c, and the value of c is minus 1, so force will be equals to mv square divided by r. This is the relation between the mass, velocity and the radius of the orbit with the centripetal force. Okay, next one is the limitations of the dimensional analysis. कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की, जिनकी वजह से हर जगह पर हम अपने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ नहीं कर सकते. पहला तो ये है कि जब भी हमें किसी डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी निकालनी होती है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो ये जो मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस का वो फेल हो जाता है. मीन्स डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स जिस टर्म के अंदर इन्वॉल्व हैं वहाँ पर हमारा डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाता है. नेक्स्ट वन इज we cannot derive the relations with the help of dimensional analysis in the expressions involving the trigonometric, logarithmic और exponential functions. Means जिन expressions के अंदर हमारे trigonometric, logarithmic या फिर exponential functions involve होते हैं, उनके लिए हम
हमारे जो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से रिलेशन ड्राइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड है वो फेल हो जाता है कब, जब हमारे एक्सप्रेशन के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स क्या रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं, या फिर हम बोले 3 या 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व रहती हैं, तो वहाँ पर भी ये हमारा क्या हो जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाता है। 3 फिजिकल क्वांटिटीज तक तो हम आसानी से रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही 3 से ज़्यादा हमारी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का जो मेथड है वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा कि जब भी हमें 2 फिजिकल क्वांटिटीज जिनके अंदर अलग अलग हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ओके, 2 फिजिकल क्वांटिटीज जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की सम या फिर सब्ट्रैक्शन की फॉर्म के अंदर दी हुई है। जैसे हम बात करते हैं S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, यहाँ पर डिस्टेंस को दिखाया गया है किसके इक्वल, वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड नेक्स्ट एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। अगर इस तरह के हमारे पास एक्सप्रेशंस रहते हैं जिनके अंदर हमें क्या है, 2 फिजिकल क्वांटिटीज को सम सब्ट्रैक्शन या फिर सम की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया गया हो, तो वहाँ पर भी हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का जो मेथड है वो फेल हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट वन है कि इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। कई बार ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो उस केस के अंदर भी हम जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर जो डायमेंशनल एनालिसिस हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का जो मेथड है वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एरर्स। एरर्स आर द mistakes that we have done during the measurement, and we can define the errors as the difference between the true value and the measured value. It is equals to, error will be equals to true value minus में measured value। अब इनका जो डिफरेंस आएगा हमारे पास वो क्या रहेगा, एरर को शो करेगा। ये पॉजिटिव भी रह सकता है और नेगेटिव भी रह सकता है। मीन्स हम क्या कर देते हैं, कई बार ज़्यादा भी मेजर कर देते हैं और कुछ ना कुछ हम कम भी मेजर कर देते हैं, तो वो क्वांटिटी जो रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, एरर्स बोलते हैं। ओके, एरर्स हमारे पास फॉलोइंग टाइप्स के रहते हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर्स आर दोज एरर्स व्हिच अकर्स इन द ऑब्जर्वेशन constantly, means if you are measuring any quantity and we observe a constant quantity, a difference of constant quantity with the true value, then that particular value is known as the कांस्टेंट एरर। मींस हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते जा रहे हैं और बार बार ट्रू वैल्यू से एक कांस्टेंट अमाउंट के अंदर या तो हमारी मेजरमेंट ज्यादा आ रही है या फिर कम आ रही है, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो एरर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एरर बोलेंगे। और इस कांस्टेंट एरर को हम रिमूव भी कर सकते हैं अगर हमें इसका एक बार पता चल जाए, या फिर हमें किसी भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की हेल्प से उस कांस्टेंट क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट एरर इज द सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स आर ऑलवेज अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन, या तो वो इंक्रीज ही होते रहेंगे या फिर वो डिक्रीज ही होते चले जाएंगे। ओके, सो इस तरह के जो एरर्स रहेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स बोलते हैं। और सिस्टमैटिक एरर्स के अंदर भी हमारे पास फॉलोइंग कुछ टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन्स हमने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, और उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही बाय मिस्टेक कुछ ना कुछ एरर आ गया है, जिसकी वजह से वो ट्रू वैल्यू से या तो कुछ ना कुछ ज्यादा अमाउंट में मेजर कर रहा है या फिर ट्रू वैल्यू से कुछ ना कुछ कम अमाउंट में मेजर कर रहा है। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एमीटर है और एमीटर के अंदर जैसे ये यहाँ पर रीडिंग्स दी हुई हैं, यहाँ पर 0 वैल्यू है, और जो हमारी नीडल है बाय डिफॉल्ट 0 से थोड़ा सा आगे सेट हो गई है। ओके, जब एमीटर के अंदर किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, उस टाइम पर भी ये 0.1 एम्पियर का करंट यहाँ पर शो कर रही है। तो इस वजह से जब भी हम एमीटर को कनेक्ट करेंगे तो हमेशा ही जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू से 0.1 एम्पियर करंट ज्यादा दिखाएगा। तो इस तरह के जो हमारे पास एरर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, और इनको रिड्यूस किया जा सकता है एक बार अगर इनका पता चल जाए तो। नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मीन्स हमने जो टेक्निक डेवलप की है किसी भी
फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अगर उसी टेक्निक के अंदर ही हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी हो, ठीक है, तो उस तरह के उससे हमारी जो मेजरमेंट के अंदर जो एरर आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरर्स ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन द मेजरिंग टेक्निक। मेजरिंग टेक्निक के अंदर ही हमने क्या कर दिया है, उसमें एरर डाल दिया है, मीन्स हमसे कुछ ना कुछ गलती हो गई है जिसकी वजह से जो हमारी मेजरिंग टेक्निक है वो मेजरिंग टेक्निक एक्यूरेट ना होकर के गलत बन गई है, और उसकी वजह से जो हमारी मेजरमेंट के अंदर जो एरर्स आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, द एरर्स ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। नेक्स्ट वन इज द पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स ये या तो हमसे गलती से हो जाते हैं, जैसे कि हम किसी भी सपोज लेंथ को मेजर कर रहे हैं और लेंथ को मेजर करते टाइम हम बार बार एक छोटी सी मिस्टेक को दोहराते चले जाएं जिसकी वजह से एक्चुअल लेंथ ना मेजर होकर के या तो उससे ज़्यादा मेजर हो जाए या फिर कम मेजर हो जाए। ओके, मोस्टली शॉपकीपर्स जो रहते हैं, जो हम बोलें कि बेईमान दुकानदार होते हैं, वो इस तरह के एरर्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पर्सनल एरर्स बोलते हैं। वो या तो क्या करेंगे, जैसे सपोज करो तोलते टाइम क्या होगा, वो कम तोल के देंगे, मीन्स वो उन्होंने क्या किया, जानबूझकर किया है अपने डिवाइस के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके। तो इस तरह के एरर्स को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द एरर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज। नेक्स्ट वन इज द एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज। Errors due to the external causes, errors which develop in the observation technique due to the external conditions like temperature, pressure, or our atmosphere, humidity also affect some of the experimental techniques, and such kind of errors are known as the external errors। ये क्या होते हैं कि जो हमारे external environment की वजह से, जैसे कि हम बात करें गर्मियों के अंदर टेम्परेचर राइज कर जाता है और सर्दियों के अंदर टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो इस वजह से जो हमारे मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो या तो अगर सपोज लोहे के बने, किसी भी मेटल के बने हुए हैं, ज़्यादा हीट की वजह से वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और जैसे ही हीट डाउन होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ हमारे मेजरिंग डिवाइस के अंदर ही इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से वो या तो कम मेजर करता है या फिर ज़्यादा मेजर कर देता है। तो इस तरह के जो एरर्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, errors due to the external conditions। Okay, our next few errors are the random errors, least count error, and the gross errors or mistakes। First one, third one is our random error। Random errors are those errors which occurs randomly, or we can say that irregularly, either they are increasing in the magnitude or either they were decreasing in the magnitude from the actual value or the true value, and such kind of errors are known as the random errors। And our next type of error is the least count error। Firstly, you have to understand what is least count। The minimum value which can be measured from any measuring device is known as the least count। If we are taking the meters, our scale, and in our scale, centimeter scale we are taking, and in the centimeter scale we have given this arrangement, it is 0 and it is 1 centimeter, and for 1 centimeter in between we have a value for 5 millimeter, and here we have 1 2 3 4 and 5 and 6 7 8 9, and this is our 10। So from the meter scale it is 0.5 centimeter and it is 1 centimeter। So from the meter scale, or we can say our simple scale, we can measure the minimum amount of value, that is 0.1 millimeter, or we can say 0.1 centimeter or 1 millimeter। So minimum value that can be measured from any device is known as the least count, and the least count of our scale that we use in our daily life is 0.1 centimeter or 1 millimeter। And the least count errors are those errors which occurs due to the least count of the measuring device। Suppose we have to measure the length of a line which is in actual of this length, okay, and we have to measure this length, okay। When we are measuring this length, then it is matched with the 0, again it is 0.5 centimeter, 0.6, 0.7, and it is 0.8,
and it lies between the 0.8 and 0.9. So here we cannot precisely describe the value of the length of this line. So here the error is occurred whether we will write the length of this line as 0.8 centimeter or 0.9 centimeter, but both of the values are wrong. Both of these values are wrong because it is greater than the 0.8 centimeter and it is less than the 0.9 centimeter. So this kind of errors arise due to the least count, because we cannot measure the particular value of the given length, because the divisions, or we can say the least count of the device is larger. Okay, so such kind of errors are known as the least count errors. Okay, next one is gross errors or mistakes. Gross error or mistakes are the errors which occurs due to the carelessness of the person which is responsible for the measurement, and these kind of errors are non-removable errors which occurs due to the personal mistakes. Okay, and suppose we are measuring any type measuring any quantity, and we are continuously measuring that particular quantity, and we write the in place of true value we write the imperfect value or a wrong value by mistake, and then this type of mistake is known as gross error or mistake, and the error arise due to this kind of mistakes or our carelessness are known as the gross error. So students, this is all about the errors, and in the next lecture we are going to discuss about the absolute error, relative error, and the percentage error that will be discussed in our next lecture. Thank you. Have a nice day.